हरि ओम 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 श्री महागणाधिपतये नमो नमः। ओम श्री सद्गुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमो नमः। ओम श्री इष्ट देवताभ्यो नमो नमः। ओम श्री वाणिज्यगर्भाभ्याम नमो नमः। ओम श्री उमा महेश्वराभ्याम नमो नमः। ओम श्री शचि पुरंदराभ्याम नमो नमः। ओम श्री कुलदेवताभ्यो नमो नमः। ओम श्री ग्राम देवताभ्यो नमो नमः। ओम श्री स्थान देवताभ्यो नमो नमः। ओम श्री वास्तु देवताभ्यो नमो नमः। ओम सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमो नमः। ओम श्री मातृपितृचरणकमलेभ्यो नमो नमः। ओम सर्वेभ्यो परमऋषिभ्यो नमो नमः। ओम श्री सत्य सनातन धर्म की जयकारा चिंतापुरनी माता जी दा दरबार की जय। जयकारा शंकराचार्य महाराज की शंकराचार्य भगवान की सनातन धर्म की साडे जिम्पा जी विधायक जी ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ब्रह्मशंकर जिम्पा ब्रह्मशंकर जिम्पा। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਰਾਸਤ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਸੇਤੂ ਦੇ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਗੋਵਰਧਨ ਮਠਪੁਰੀ ਪੀਠਾਧੀਸ਼ਵਰ ਅਤੇ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਸਵਾਮੀ ਨਿਸ਼ਲਾਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਭੂਮੀ ਪੂਜਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸੇਤੂ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਵਾਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਬ੍ਰਹਮਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਮਹਾਵੀਰ ਸੇਤੂ ਮਾਤਾ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਧੋਬੀਘਾਟ ਚੌਂਕ ਤੱਕ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦਾ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਪਥ ਅਤੇ ਧੋਬੀਘਾਟ ਚੌਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਚੌਂਕ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲੜੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਿਆਂ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਆਦਮਵਾਲ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਇਸ ਪੁਲ ਦਾ ਨਾਮ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਸੇਤੂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਬਣਨ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਹਗੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਅਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਕੰਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਸੰਦੀਪ ਡੋਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੋਪੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਰੱਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। ਛੋਟੀ ਕਾਸ਼ੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਨ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਨਾਤਨ ਪ੍ਰੇਮੀ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀਘਾਟ ਚੌਂਕ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਧੋਬੀਘਾਟ ਚੌਂਕ ਚੱਲਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮੋਹਤਵਰਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਰੱਖਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੁਲ ਬਣਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਆਦਮਵਾਲ ਰੋਡ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਿ ਗੁਰੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰਿਆ ਸੇਤੂ ਜਿਹੜਾ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਅੱਜ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕੋਈ ਧਾਰਮਿਕ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਤਭੇਦ ਭੁਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕਰਨ ਆਇਆ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਭ ਹੈ ਇਸ ਸੇਤੂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਦੇ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸੀਗੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੁਲ ਤੋਂ ਭੰਗੀ ਪੁਲ ਤੋਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਮੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਔਖ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਾਜ਼ਵੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਔਰ ਸਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਿਹੜੀ ਉੱਪਰੋਂ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਹੂਲਤ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਦੇ, ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਚੌਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੱਦੀ ਚੌਕ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰੀਦਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਬਰਸਾਤਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਚੋਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਸ ਪੁਲ ਦੇ ਬਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਧਾਵਾਨ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਿੰਤਪੁਰਨੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਮਿलेगी। आज भव्य भूमि पूजन समारोह जो है आदि गुरु शंकराचार्य सेतु, आदि गुरु शंकराचार्य चौक, वहाँ से लेके ये
आदमबाल को जो रोड जा रही है, हमारी देवभूमि हिमाचल के साथ जाके इसका सम्मिलित होती है, जाके उस रोड के ऊपर, मेन नेशनल हाईवे के ऊपर। तो मैं धन्यवाद करता हूँ और बड़ा खुश नसीब समझता हूँ सब लोगों को। और ख़ास तौर पे आज शंकराचार्य जी का, दयानंद सरस्वती जी का यहाँ पधारना, ये हमारे सबके लिए बहुत ही विशेष आशीर्वाद था। और उनके हाथों से इस नीम का शुरुआत होने, महापुरुषों का जो हाथ होते हैं उनका दर्शन होता है, बहुत बड़ी चीज़ होती है। तो जितने शहरवासी इसमें सम्मिलित हुए हैं सब एक यज्ञ के रूप में सम्मिलित हुए हैं। भूमि पूजन किया गया, मंत्रोच्चारण किया गया, हमारे सनातन की परंपराएं हैं। उस परंपराओं में दुनिया की हर एक चीज़ को याद किया जाता है, भूमि को, मिट्टी को, पवन को, पानी को, आकाश को, अग्नि को। सो जितने भी लोग सम्मिलित हैं, मेरे जितने मीडिया के साथी हैं, इनका आभारी हूँ। और इन्होंने इस कार्यक्रम को पूरा लोगों तक पहुँचाया और शंकराचार्य महाराज जी के भी दर्शन करवाए। और जहाँ इसका नामकरण किया है, रामपथ से लेके शंकराचार्य चौक तक, जब सब लोग जैसा चाहेंगे वहाँ एक चौक के रूप में जो निर्माण किया जाएगा, आपके विचार के अनुरूप किया जाएगा, आप सब लोगों से विचार लिया जाएगा। मैं चाहता हूँ मेरे शहर का कोई भी काम शुरू हो, उसमें होशियारपुर के हर एक नागरिक का विचार सम्मिलित हो, हम उसको सबमिशन लेके आगे काम करें। ये काम तो शुरू होगा तो कितनी दी लागत है सारा हैगा काम? ये तकरीबन जो पुल का काम है ये 8-8.25 करोड़ रुपए की लागत का है। और जो आगे सड़क का निर्माण हो चुका है वो 4 करोड़ के नज़दीक, जिसमें दोनों तरफ टाइल वर्क से रोड को चौड़ा किया गया है। और जो बीच में नहर आ रही है उसके भी पुल को चौड़ा किया जाएगा। और साथ में सारा लाइट वर्क्स है, सारी भूमि अब जगमगाएगी रात को। कितने टाइम में बनेगा जी इसका? हमने जो टारगेट लिया है नेक्स्ट ईयर 2027 का लिया है। डिज़ाइन मैं धन्यवाद करता हूँ मेरे जो इंजीनियर हैं, हमारे एक्शन साहब जो हैं मेरे साथ खड़े हैं इस वक्त, गुरमीत जी, और बहुत अच्छे इसको कहते हैं ऑफिसर हैं डिपार्टमेंट के, बड़ी लगन से काम करते हैं। और मैं कह सकता हूँ इस काम को जो मैं जल्दी पूरा करा सका, बहुत सारी एनओसी की ज़रूरत होती हैं, वो कोई बार विधायक ले ही नहीं पाते तो काम नहीं शुरू हो पाता। तो मैं इनका जो सहयोग है पूरे डिपार्टमेंट का, उसका भी धन्यवाद करता हूँ। ख़ास तौर पे एक्शन साहब का धन्यवाद करता हूँ जो इन्होंने एक सुंदर डिज़ाइन शुरू किया। और इसमें जो आज कार्यक्रम है उसमें सब में सहयोग इनका है, तो बहुत बहुत शुक्रिया है, धन्यवाद है। चौक में महाराज शंकराचार्य जी की प्रतिमा भी रखी जाएगी? आप जैसा कहेंगे, मैं तभी कहा है, लोगों के विचार के अनुरूप किया जाएगा। हत्या का समर्थन ही हो गया ना, कि अभी तो गो हत्या का समर्थन होगा। इतने वर्ष बाद काटी जाएगी, इसका हम लोग हत्या का समर्थन ही तो हुआ। ऐसा है कि मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे और मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब मोदी जी ने कहा था मनमोहन सिंह जी को गो हत्या बंद कर देनी चाहिए। मनमोहन सिंह जी ने गो हत्या बंद नहीं की, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री के पद पर जो प्रतिष्ठित होता है क्रिश्चियन, कम्युनिस्ट, मुस्लिम तंत्र का दासानुदास बन जाता है। उसमें इतना धैर्य नहीं होता कि भारत को भारत के रूप में उद्भाषित करें। अब मोदी जी 12 वर्षों से प्रधानमंत्री के पद पर प्रतिष्ठित हैं। अब वो कहते हैं गोरक्षा गुंडे, वहाँ जाकर वो भी पेशा ही गए। किसी उम्र की, तब तो कई ना ब्राह्मण भी हैं, अमुक भी हैं, उनको इतने उम्र के बाद काटा जा सकता है, सर्वसानुचित। हमारी त्योरी चढ़ गई तो पूरे शासन तंत्र को रसातल पहुंचा दें, चाहे किसी भी पार्टी का शासन तंत्र क्यों न हो। भारत को भारत के रूप में ख्यापित करने की भावना जिनकी नहीं है, वो कोई भी भारत में शासन करने के योग्य नहीं। गो हत्या के समर्थकों को भारत खाली कर देना चाहिए।
दसों तिथि प्रेरणा की गल है। गर्मी में चक्कर ना आ जाए। गुरु जी मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, अच्छा मनमोहन सिंह की जब सरकार थी तो उस समय रामलला ट्रस्ट जब आज से 10-12 साल पहले बनने गया होता राम मंदिर, तो आपने रामलला ट्रस्ट को उसके ऊपर अपने हस्ताक्षर नहीं किया था, तो हम लोगों को 15 साल इंतजार करना पड़ा। नरसिंह राव की सरकार नरसिंह राव के शासन काल में ही मैं शंकराचार्य के पद पर प्रतिष्ठित किया गया। मुझे मालूम पड़ा कि नरसिंह राव अयोध्या में यथास्थान मंदिर तो बनवाना चाहते हैं, अगल बगल या आमने सामने मस्जिद भी बनवाना चाहते हैं, इसलिए मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। मेरे अपहरण का मरवाने का भी प्रयास किया गया, भगवत कृपा से वो प्रयास शासन दल का सफल नहीं हुआ। मैंने हस्ताक्षर नहीं किया। अंत में नरसिंह राव जी ने अपना प्रतिनिधि भेज के कहलवाया। अन्य आचार्यों के हस्ताक्षर कर देने पर भी आपके हस्ताक्षर के बिना हमने दमखम नहीं कि हम अपनी योजना को क्रियान्वित कर सके। अगर उसी समय हमने हस्ताक्षर कर दिया होता, नरसिंह राव के शासनकाल में अयोध्या में मंदिर बन गया होता, अगल बगल आमने सामने मस्जिद बन गई होती। अब से तो मोदी जी योगी जी को मिला है 25 किलोमीटर दूर मस्जिद बनाने की अनुमति उन्होंने दे ही दी है। आगे यही संकट वृंदावन में भी है और मथुरा में भी है। क्या संकट? काशी और मथुरा बोला जाता है। मंदिर मस्जिद का काशी और मथुरा बोला। काशी और मथुरा में क्या संकट है? जो मंदिर और मस्जिद का विवाद था, वैसे ही जन्मभूमि में मथुरा में और ज्ञानवापी काशी दोनों जगह भी मंदिर मस्जिद बना विवाद ही है। उसके लिए क्या होगा पूछ रहे हैं। वहाँ भी ऐसी स्थिति है, अभी निर्णय हुआ नहीं। योगी जी हैं मुख्यमंत्री, उन्हीं के कार्यक्षेत्र की बात है ना। योगी जी पूछा तो मैं उत्तर दूंगा, बुझ रहा हूँ। आगे सब बात बोल देने पर काम सफल नहीं होता। अन्य लक्षित कार्य से यथासिद्ध न जाए। एक सर खास वर्ग के लोग पास बड़ी सदन। हेलो सर, एक खास वर्ग के लोग ने कहा कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। क्या लगता नहीं इसमें बहुत बड़ा षड्यंत्र है? हिंदू लोग ऐसा है कि पानी पी लो। गाय को पशु कहते हैं, लेकिन वो तो जगत जननी है। पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो ब्रह्मा जी के पास पृथ्वी गाय का रूप धारण करके ही जाते हैं। वो रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ था। क्या पूछा उन्होंने? एक वर्ग विशेष है, मुसलमानों को संकेत करके कह रहे हैं कि उन्होंने हिंदुओं की ओर से आवाज आई कि गौ माता राष्ट्र माता, लेकिन एक वर्ग विशेष कह रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर देना चाहिए। ऐसा है कि कह रहे हैं इसमें षड्यंत्र नहीं है, क्या होगा? गंगा जी को राष्ट्रीय नदी घोषित की गई। गंगा जी की दुर्दशा तो बढ़ ही गई है। राष्ट्र माता घोषित करने हैं, लेकिन दमखम होना चाहिए कि घोषित करने के बाद तदनुकूल प्रयास भी हो। ये तो गाय की बात कह रहे आप। गंगा को तो राष्ट्रीय नदी घोषित कर दी गई, गंगा तो और दूषित कर दी गई है। अच्छा है कि राष्ट्रमाता घोषित कर दें, कम से कम टोकने का अधिकार तो हो जाएगा लोग।
आगे उसे प्रेम लगते बढ़ जाओ चलेगा लग आगे पंजाबियों के बीच नहीं हो पा रहा वो देखेगा। महाराज जी आज सेतु के उद्घाटन पे आए हो। सेतु है बन रहा है, सुन रहे तो हैं। सेतु है, सेतु बन रहा है, इसके उद्घाटन के लिए आए हो। फिर क्या क्या कहना कहना चाहते हो? आप क्या कहना चाहते हैं? राम सेतु कौन सा सेतु, कहाँ के लिए? कौन सा रास्ता है बताइए। चिंतापुरनी रोड जाएगी, आप बताइए। बहुत अच्छा संकल्प है, प्रयास है। भगवान की कृपा से यह प्रयास पूर्ण रूप से सफल हो, ऐसी भावना। जगन्नाथ धाम बंगाल में बनाना चाहते थे, हमने लिखित संदेश दिया था। फल तो ये हुआ बनता जगह शाही हो गया। महाराज जी आजकल बहुत सारे हिंदू क्रिश्चियनों में जा रहे हैं, बहुत सारे हिंदू अपने क्षेत्र को में मंदिर को केंद्र बनाकर चतुर्दिक ऐसा प्रयास करें कि व्यक्ति गरीबी से तंग होकर क्रिश्चियन न बने। साथ ही साथ हिंदू धर्म सनातन धर्म का प्रतिपादन दार्शनिक वैज्ञानिक व्यावहारिक धरातल पर करना चाहिए। सुनिए, टेरेसा थी या नहीं, जो दलित आजकल कहे जाते हैं, हम लोगों के यहाँ तो अंचल कहा गया, छोटा भाई, ब्राह्मणों को अग्रज कहा गया, मायावती आज ने दलित कहा। वो क्रिश्चियन बन गए टेरेसा के संपर्क में आकर के, लेकिन उनको क्या कहा गया, दलित क्रिश्चियन। दलित विशेषण नहीं हटा, लाभ क्या हुआ? महाराज जी जब अन्य जो धार्मिक स्थान है अन्य धर्म के, वहाँ पर जो अपने धर्म को ऊंचा उठाने के लिए प्रचार प्रसार किया जाता है, लेकिन जब हम लोग अपने सनातन धर्म के किसी भी धर्म मंदिर में या और किसी स्थान पर जब हम प्रचार करते हैं तो वहाँ की कमेटियाँ जो हैं, वहाँ के जो लोग हैं, रोकने लग जाते हैं। ऐसा क्यों है, क्या करना चाहिए? हमको तो रोकते नहीं, हम जो बोलते हैं क्रिश्चियन का मुसलमान भी उस पर लट्टू हो जाते हैं। क्रिश्चियन कम्युनिस्ट मुसलमान भी कहीं हमारा विरोध करते क्या? हम लल्लू चप्पू करते नहीं बोलते हैं, जो बोलना हो बोलते हैं। दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य आकर बोलते हैं। स्वामी जी अभिमुक्तानंद जी महाराज के बारे में क्या कहेंगे? आप हृदय में जो भाव है उस पर विचार कीजिए, हमको लड़ाने का प्रयास मत कीजिए। आपकी दाढ़ी तो बढ़िया है, बिल्कुल सही। दाढ़ी बचा के रखिए। आपकी दाढ़ी बच्ची रहेगी तो वो भी बच्चे रहेंगे। अभिमुक्त क्षेत्र का नाम काशी है, ये मालूम है ना? अभिमुक्त नाक का अर्थ जानते हैं? नाक, नाक, नाक स्वर को कहते हैं नाक, है ना? ये क का अर्थ होता है सुख, और लगा दिया सुख नहीं, न लगा दिया सुख नहीं, ऐसा नहीं। जो क का अर्थ होता है वही नाक का अर्थ होता है। निषेध का निषेध विधि बन जाए या नहीं? वाणी पर लोभ भय कोरी भावुकता विवेक का प्रभाव न हो। चार दोष हैं, लोभ भय कोरी भावुकता विवेक, चारों से रहित वाणी बोलनी चाहिए। दर्शन विज्ञान व्यवहार में सामंजस्य साधकर सबके हित का ध्यान रख